85% of India lives in villages. Despite being the majority, these people are deprived of the very essentials that make their life human. Education is one of the most significant in these categories. Low literacy rate is a self-perpetuating, never-ending cycle. One of the reasons for low literacy is the lack of infrastructure. But the other significant reason is the proxy adulthood that these children have to assume when they live in rural areas. Children have to tend to farms in the morning or take care of their siblings, thereby taking the responsibilities of a full adult during the day and thus depriving them of the time for education. लाइट रहेगी तो पढ़ाई जरूरी है, अगर लाइट नहीं रहा तो मतलब पढ़ाई काज कर सकते। चिमनी में क्या दिखता है, वो तो लैंप से मतलब पढ़ाई अधिकतर बच्चे करते हैं, लैंप पर रहता फट से अपन चालू कर सकते हैं। बच्चा कहते अगर लाइट नहीं हो तो बच्चा बोला, अपन भी बोलते तो बच्चे बोलते कि नहीं लाइट तो है नहीं, और पढ़ाई कैसे करें। There seems to be a significant difference between the urban and rural areas, be it infrastructure, income, or education. Even the essentials of food, shelter, and clothing have a striking and a horrifying difference. It seems like a bias has been created. But God, who has created this world, has no bias against either the urban or the rural areas. The sun shines equally bright and for equal durations on both these areas. In villages, when the sun sets, the day ends. All activities cease with the sun, as there is no grid electricity. The NEA Foundation, with the Solar Lantern Project, aims at harnessing this sunlight during the day and using it during the night for education purposes. और बाकी सौर ऊर्जा की जो लाइट थी उससे कुछ फर्क पड़ा पढ़ाई के अंदर, बच्चों की कुछ अटेंडेंस इम्प्रूव हुई या परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। अच्छा, अटेंडेंस पहले से अच्छी। उपयोग आप ये कर रहे हैं, वैसे वो बिजली अभी यहाँ तो ठीक है। अच्छा, जैसे गाँव में उनका तो उपयोग कर रहे हो अच्छा, जैसे ये रोगी होता है माल पा जाए या बिजली का उत्पादन नहीं है वो उपयोग करते हैं। अच्छा, यहीं पे आते हैं हाँ, इसीलिए हम यहाँ डायरेक्ट स्कूल ही आ गए, क्योंकि फिर दूसरे और गाँव के बच्चे भी आते हैं। हाँ, तो वहीं से इवनिंग सर्वे हो जाता है। Swami Vivekananda once said, if children cannot go to school, the school must be brought to the children. In villages, the day ends with the sunset. मतलब लैंप देने के बाद कुछ इम्प्रूव हुआ? हाँ, वो तो है ना, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कितना आपके हिसाब से मतलब रोज का ज़्यादा पढ़ लेते हैं लैंप की वजह से? लैंप से थोड़ा फर्क पड़ा, 25% करीब। Giving meaning to Swami Vivekananda's saying, a lot of organizations have taken upon them the task of imparting education in these villages. The small window of opportunity in the night that is presented to them has a limited scope. The organizations have to use kerosene lamps for this purpose. These lamps are neither economical nor environment friendly. The disadvantages of the lamp include a significant cost and the health hazard, the pollution that it causes. करो तो ये बटन दबा के चालू कर लेगी और घासलेट की चिमनी को जलाए तो ये जल जाएगी। अरे इससे बहुत फायदा है, घासलेट की चिमनी से तो अच्छा है। हाँ, घासलेट की चिमनी से और तुम्हारे टार से अच्छा है। अभी मार्केट में जाओ 20 रुपए में साइज मिलते हैं और 1 महीने भी नहीं सर्विस देते हैं, और ये तो घंटे भी चलते रहता है। बस ये भगवान ने दिया है, बहुत बढ़िया काम, अच्छी चीज है ये। The NEA Foundation, with the Solar Lantern Project, aims at harnessing this sunlight during the day and using it during the night for education purposes. The purpose of this organization is to promote use of solar energy or in general the renewable energy technology for providing greater energy access to rural area. The solar lantern system comprises of a solar photovoltaic panel, a CFL, and a battery. The panel charges the battery during the daytime, and the CFL is used for lighting purposes during the night. Replacing the kerosene lamps has been a step forward for education in villages. The time for which the schools run has nearly doubled. The schools now running for 3 hours a day.
this has improved the quality as well as the quantity of education. And enthusiasm can be seen in the villages for the project. जैसे क्या है, बच्चों ने पहले तो कम रुचि बताई, अच्छा, जैसे दूसरे लेके गए ना, हाँ, और सब वो लेने लगे, फिर उन्होंने 2-3 दिन रखा, उनका उसका यूज देखा, सभी तैयार हो गया। अच्छा, गुड मॉर्निंग अभी भी। अच्छा, ठीक है। और बच्चों से ज्यादा तो उनके पालकों को अच्छा लगा। सर अपन 5 से 6 घंटे की सर उसकी लाइट किए देते हैं। हाँ। फिर भी सर कुछ लोगों का बताना है कि वो कंटिन्यूस 10 घंटे चलता है। अच्छा 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 अच्छा। अपन तो सर 5 घंटे की उसकी गारंटी लेते हैं। हाँ, 4 से 5 घंटे चलेगा एक बार चार्ज करने में। फिर भी सर किसान लोगों की सर ये है कि वो बोले कंटिन्यूस 10 घंटे चलते रहता है। लाइट कम होता है पर चलते रहता है, काम नहीं रुकता। इतना लाइट तो देता है कि हमारा काम चलते रहे। लेकिन मैंने तो 10 घंटे चलाने के बाद भी मैंने मेरा हाथ से बंद किया, लेकिन लाइट उसका कम नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। कंटिन्यूस 10 घंटे बोलते कि भाई लाइट कम जो हो जाता, लेकिन मैंने देखा कि लाइट इसमें कम हुआ। चार्ज अच्छा होगा तो चार्ज अच्छा हो जाता होगा जिसका नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, धूप से चार्ज होता है वो तो, मतलब सुबह हुआ कि चार्ज भले ही नहीं धूप निकले उसके बाद भी चार्ज होता है। हाँ सर, टेम्परेचर से सर थोड़ा सा रहता है ना, ये भी लाइट का है। प्रकाश दीवार से टकराया, जैसे यहाँ पर भी सर आप लगा के रख दीजिए, यहाँ भी चार्ज थोड़ा बहुत तो हो जाता है। टेम्परेचर जैसे मिलते रहता है, गर्मी से भी चार्ज होते रहता है। Over 550 schools have been illuminated with the solar lantern project, brightening the lives of over 16,000 students. These students are spread over 7 states in India. कितने लोगों को बांटा है यहाँ पर? यहाँ पे 112 के कितने हुए थे? अच्छा, 100 से ऊपर है। And the project aims at giving out another 15,000 lanterns next year. मतलब लैम्प बांटने के बाद कुछ फर्क दिखा है? फर्क दिखा है, बस वो पूछना था। सौर ऊर्जा से रिलेटेड अपनी लाइट दी है, तो आपने देखी है कैसी चलती है? ये बच्चा ना बच्चों के पास जो लैम्प है घर में चलाते हैं। अच्छा, कैसा है उसमें से पढ़ी बड़ी अच्छी हुई थोड़ी काम के अंदर? हाँ, रात में खराब होते जाता था, ऐसे थोड़ी बिजली नहीं जा पाती। बहुत बढ़िया सिस्टम है। मैं तो वहाँ से लाने की सोच रहा था, बोले देते नहीं, बोले कि एक ही को देते हैं ऐसा। हाँ। मतलब घर पे जितने बच्चे हैं बच्चों को दे रहे हैं वो लोग, ऐसा बोले। मतलब मैंने ऐसा नहीं है, जैसे पढ़ने जाते हैं तो उनको देते हाँ, हैं। वही पढ़ने जाते तो हैं। क्या वो महंगा थोड़ी है, 200 में बहुत बढ़िया सिस्टम है। These lanterns have already transformed the evening education in rural India. The potential for solar energy is immense, with applications ranging from irrigation, home lighting, to even small-scale industries, completely transforming the way rural India. ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे बोर के लिए वो सोलार वाले बोर भी हो रहते हैं ना? सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप भी होते हैं। अच्छा, तो उनका आप उपयोग करना चाहेंगे क्या? अगर सौर ऊर्जा से चले पंप, पानी जो है अभी इलेक्ट्रिसिटी और बिजली को यूज करके ऊपर लगा है। सौर ऊर्जा से जैसे लाइट चलती है ना सौर ऊर्जा से, वैसे बोरवेल है, पंखा है, टीवी है, ये सब भी चला सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या? अभी तो अब हमने ये बात अभी सुनी, अब आप बता रहे हो, हमने सोचे भी क्या और बताया भी कि हमको कोई अनुभव नहीं है इस चीज का। ठीक है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे कोई आके दिखाए कि ये कैसे काम करता है तो आपको पता चल जाएगा। पता लगेगा। अरे तो अभी तो अपन देखियो भी नहीं। ठीक है, तो कभी ये काम हमारे नॉलेज की बात है नहीं ये। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मतलब यहाँ पर उसका यहाँ पे अगर कोई आके बताएंगे तो चलेगा। ठीक है।